Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the seventh part of our fourth chapter, Computer Networking and Multimedia Basics. And today in this video we will revise a few topics. Well, today we have to revise transmission mediums and cloud computing. Because in most of the comments I have found that some of you have some doubts with the transmission mediums and some of you have some doubts with this cloud computing thing. Now let's start. Well, before starting this explanation part, I just want to clear a few things. First important thing, well, by the Saturday you will get the notes of this chapter, because then you will have that Sunday to complete your work, or for this chapter you will get a proper time. It means you can send me the notes of this chapter after exams. Fine. It means जो हम लोग का नेटवर्किंग वाला चैप्टर है इसके नोट्स तुम लोग मुझे एग्जाम्स के बाद सेंड करोगे. That's why I will provide you the PDF by this Saturday only, and you can complete your work as per your ease. First thing. Second most important thing, in your exams only chapter 1 and chapter 2 are coming. Well, I have checked and seen your chapter 1s, most of the work I have seen, but due to some technical error I am not able to put the red marks. Fine. The same problems with the chapter 2 also. So kindly send your work if in case you haven't sent yet, and I have seen most of the works. In some of your PDFs you will find the red ticks, but in some you won't find it. But still you can mark it as checked work. And the last important thing. In our computer test, because we have only two chapters, chapter 1 and chapter 2, it means you have to prepare everything, even from the book also. Fine, what you have to do, you have to read the MCQs, the question answers which are solved one, and then you have to read the notes also. This much you have to prepare from your book as well as from notebook, and overall your exam will be of 25 marks. Now let's start the discussion of today's class. Well, जो आज का first topic है हम लोगों का, it is communication and network, that is by using communication or transmission mediums. Well, इन जनरल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, भाई जो नेटवर्क होता है ये क्या होता है, ये 2 या 3 कंप्यूटर्स का कनेक्शन होता है. जब हम लोग 2 या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं सो दैट दे कैन शेयर डेटा एंड रिसोर्सेज, देन इट इज टर्म्ड एज अ नेटवर्क. अब एक नेटवर्क बहुत छोटा हो सकता है, यानी उसमें मिनिमम 2 कंप्यूटर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो सकते हैं. इट मीन्स इन अ नेटवर्क वी कैन हैव मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क साइज. वेल, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को लैन, मैन और वैन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करा था. अब हम लोगों को डिस्कस करना है ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट कीप वन थिंग इन आवर माइंड. जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, फाइन, देन फॉर कनेक्टिंग आवर कंप्यूटर्स हम लोगों को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है. इसका मतलब अगर मेरे पास ये 4 कंप्यूटर्स फिर मुझे इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो या तो मैं इन चारों कंप्यूटर्स को कनेक्ट करूंगा केबल्स के थ्रू, और हैव टू कनेक्ट ऑल दीज 4 कंप्यूटर्स बाय यूजिंग वायरलेस सिग्नल्स. अगर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ केबल्स का, देन इट कैन बी टर्म्ड एज अ वायर्ड और गाइडेड मीडियम. बट इफ इन केस आई एम यूजिंग सम सिग्नल्स, देन इट कैन बी टर्म्ड एज वायरलेस और अनगाइडेड मीडियम. फाइन. सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स दैट वी हैव, दैट इज वायर्ड एंड वायरलेस. अब बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की, दैट इज वायर्ड और गाइडेड मीडियम. तो भाई वायर्ड और गाइडेड मीडियम में क्या होता है, हम लोगों के सारे कंप्यूटर्स केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपस में, और ये क्या करते हैं भाई, डेटा को शेयर करते हैं केबल्स के थ्रू. वेल, ये नेटवर्क जो होता है गाइडेड वाला, ये जनरली उन नेटवर्क्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर हम लोग को डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, और हम लोग को चेक करना है कि कितने कंप्यूटर्स किस तरह से कनेक्टेड हैं. अगर हम लोग को ये टाइमली चेक करते रहना है कि कितने कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो इन दैट केस वी कैन प्रेफर दिस गाइडेड मीडियम. बट इफ इन केस वी डोंट केयर अबाउट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और द मोड्स विच आर कनेक्टेड विद आवर कंप्यूटर सिस्टम, तो हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वायरलेस मीडियम को. फर्स्ट थिंग. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका नाम गाइडेड क्यों है भाई. अब इसका नाम गाइडेड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हम लोगों को पता होते हैं, पहली चीज़. सेकंड चीज़, नेटवर्क का लेआउट यहाँ पर क्लियर होता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 4 कंप्यूटर्स थे मेरे पास ये, और मैंने इनको केबल से कनेक्ट कराया, तो मुझे दिख रहा है इजीली कि कौन सा कंप्यूटर किस कंप्यूटर से कनेक्टेड है केबल्स के थ्रू. फाइन. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस गाइडेड नेटवर्क. अब गाइडेड नेटवर्क में हम लोग 3 तरीके की केबल्स यूज कर सकते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. फर्स्ट वाली आती है ट्विस्टेड पेयर. मैंने बताया था भाई, ट्विस्टेड पेयर केबल को बनाया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. फाइन. और ये मोस्टली यूज़ होती थी पहले टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के लिए, और आज की डेट में यूज़ होती हैं ये नॉर्मल नेटवर्क्स में, या फिर हम लोगों के नॉर्मल लैन नेटवर्क्स में. याद रखना, जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं इनका यूज़ हम लोग करते हैं लैन नेटवर्क्स में. इन जनरल इन दीज केबल्स द केबल्स आर ट्विस्टेड, मतलब जो केबल्स होती हैं वो कुछ इस तरह से ट्विस्टेड होती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर टर्म्ड एज ट्विस्टेड पेयर केबल्स. अब मार्केट में 2 तरीके की ट्विस्टेड पेयर केबल्स आती हैं. फाइन. दीज आर एसटीपी एंड यूटीपी, यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. तो भाई ये होता है यूटीपी यानी अनशील्डेड, और एसटीपी का मतलब होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर. अब ये जो हम लोग की अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसमें कोई भी अपर लेयर कोटिंग नहीं होती है. बट ये जो हम लोग की शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, यहाँ पे एक अपर लेयर कोटिंग होती है, जिसकी वजह से जो हम लोग की केबल होती है वो प्रोटेक्टेड रहती है.
अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर में केबल का टूटना एक मेन कॉमन कॉज होता है, जिसकी वजह से कभी कभी डेटा लॉस भी हो सकता है। बट शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, इसलिए केबल की स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और ये कॉस्टली भी होती है। तो अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की ग्राफ की भाई, तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं ये बहुत चीप होती हैं। इन ट्विस्टेड पेयर केबल्स में सबसे चीप क्वालिटी की जो केबल होती है दैट इज यूटीपी, और यूटीपी से ज़्यादा कॉस्टली होती है हम लोगों की एसटीपी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड टर्म दैट इज कोएक्सियल केबल। अब भाई जो कोएक्सियल केबल होती है यहाँ पे एक कॉमन एक्सेस होती है पूरी केबल की, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज कोएक्सियल केबल एंड इट इज जनरली यूज्ड इन मैन नेटवर्क। और इसका मोस्ट कॉमन हम लोग एग्जांपल देखते हैं अपने केबल टीवी नेटवर्क्स में। फाइन, अब बिकॉज इसका मैन में यूज होता है इसलिए एक सिटी के अंदर ही मोस्टली प्रेफर करी जाती है और बड़े नेटवर्क्स में इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दीज आउटर प्रोटेक्शन, जैसे कि यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक जैकेट है, फिर यहाँ पर एक कंडक्टिंग शील्ड है, इंसुलेटिंग शील्ड है, सेंट्रिक कंडक्टर बीच में आता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर केबल का ब्रेक होना, केबल में क्रॉस टॉक, लाइटनिंग, ईएमआई या वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं। देन आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइबर ऑप्टिक केबल। अभी जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है सबसे कॉस्टली केबल्स होती हैं भाई ये, ठीक है, सबसे कॉस्टली केबल्स होती हैं और इनका हम लोग यूज़ करते हैं वैन में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क में, जहाँ पर हम लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात आती है, जहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना होता है, कंट्रीज़ को कनेक्ट करना होता है, सिटीज़ को कनेक्ट करना होता है, एंड मोस्टली दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली केबल्स। फाइन, नाउ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो हम लोग की फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ये लगभग 26,000 गुना ज़्यादा फास्ट होती हैं इन कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल्स, एंड दीज आर 2000 टाइम्स फास्टर देन आर कोएक्सियल केबल्स। नाउ ये जो हम लोग की फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं इसकी दो कैटेगरीज आती हैं, दैट इज सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन नहीं करना है, बस हम लोग को यहाँ पे इतना ही डिस्कस करना था। रेस्ट यू कैन रीड इट वंस, इट कैन हेल्प यू टू रिवाइज दिस चैप्टर वेरी इजीली। नाउ आवर नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडियम इज वायरलेस। अब वायरलेस का सिंपल सा मतलब हुआ कोई ऐसा मीडियम जहाँ पे हम लोग केबल्स का यूज नहीं कर रहे होंगे, यानी वहाँ पे वायर्स नहीं होंगी। एंड इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनगाइडेड, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेटवर्क में फिक्स पाथ नहीं होता है केबल्स का या डिवाइसेस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 कंप्यूटर्स थे और मैंने इनको एक वायरलेस मीडियम में जोड़ के रखा हुआ है, मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये जो ABC हैं ये आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। मैं इनको फिजिकली देख के नहीं बता सकता हूँ, बट ये हो सकता है एक वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड हो। अब हम लोग के पास जनरली कुछ वायरलेस नेटवर्क्स हैं जिनका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, इंफ्रारेड। जो हम लोग का मोबाइल का रिमोट होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं इंफ्रारेड का, ठीक है। जो तुम लोगों ने देखा होगा आजकल मोबाइल फोन्स आ रहे हैं उनमें एक रिमोट वाला फीचर होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने अप्लाइंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वी हैव रिमोट कंट्रोल्स ऑफ आर AC एंड टेलीविजन, ठीक है। उनमें भी जो इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ होता है, एक लाइट जैसा आगे कुछ इस तरीके का एक LED लगी होती है ना, ये जो LED होती है एक इंफ्रारेड सेंसर होता है जो क्या करता है, हम लोग के टीवी से कम्युनिकेट करता है और वहाँ पे सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। फाइन, तो ये इंफ्रारेड भी एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन वाला डिवाइस है। देन वी हैव ब्लूटूथ सिग्नल एंड वाईफाई सिग्नल ऑल्सो। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्लूटूथ की, फिर बात करेंगे वाईफाई की। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के ट्रांसमिशन मीडियम्स को समझना है वायरलेस में। सो फर्स्ट इज ब्लूटूथ। अभी जो ब्लूटूथ है भाई, ये एक शॉर्ट रेंज सर्विस है जो कि 4 to 5 फीट में ही वर्क करती है, उससे ऊपर में वर्क नहीं करती है। इट मीन्स अगर हम लोग बहुत नियर बाय हैं और हम लोगों को डेटा शेयर करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ब्लूटूथ का। फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करूँगा, बाकी तुम लोग रीड कर सकते हो भाई। तो ये जो ब्लूटूथ है क्या करता है, जनरली 4 to 5 फीट के नेटवर्क के लिए होता है। अलॉन्ग विद दैट ये सिंगल मोड होता है, यानी कि यहाँ पर एक ही यूज़र एक बार में डेटा को सेंड या रिसीव कर पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि भाई अगर यहाँ पर हम लोग की रेंज बढ़ा देता हूँ मैं, मगर मैं यहाँ पे 4 या 5 फीट से ऊपर में इसको यूज़ करता हूँ तो मेरी सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, जिसका मतलब डेटा का रेट बहुत स्लो हो जाएगा। एंड इसमें एक बार में सिर्फ एक ही यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं भाई, इसीलिए इसको हम लोग का प्रेफर नहीं करते हैं। देन आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज वाईफाई। वेल वाईफाई इज़ फार बेटर एंड कम्पेयर टू आवर ब्लूटूथ। वाईफाई बहुत अच्छा है। वेल जो वाईफाई होता है ये 10 फीट से लेकर के, फाइन, मिनिमम 10 फीट से लेकर के ये हम लोग इसको लगभग 500 मीटर तक का की रेंज का क्रिएट कर सकते हैं। वहीं जो अभी आज की डेट में बहुत अच्छे अच्छे वाईफाई अवेलेबल हैं वो 500 मीटर तक का की रेंज को कवर करते हैं। वेल तुम लोगों को बुक्स में यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, बट मैं अपडेटेड वैल्यूज को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अभी जो वायरलेस नेटवर्क होता है वाईफाई, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, यानी एक वायरलेस मेथड है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। द बेस्ट थिंग इज दैट कि वाईफाई में जो नेटवर्क होता है ये डुअल मोड में होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सेंड प्लस रिसीव दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। यानी अगर वाईफाई नेटवर्क में 2 मोबाइल फोन्स कनेक्टेड है तो वो दोनों के दोनों फोन्स आपस में डेटा को शेयर कर पाएंगे, यानी सेंड और रिसीव दोनों कर पाएंगे एट द सेम टाइम। अब बात करते हैं अगली बात की भाई। अभी वाईफाई जो सिग्नल है ये एक बड़े सिंपल से कंसेप्ट पे काम करता है। ये काम करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा पे।
ये क्या करता है भाई, अगर मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास एक वाईफाई था जिसकी स्पीड थी 1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, जो कि 1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता था, और मैंने अपने इस वाईफाई में एक कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखा हुआ है। अभी क्या करेगा, मेरे पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी इस कंप्यूटर को प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से मेरे इस कंप्यूटर को बहुत हाई स्पीड मिलेगी। बट अगर मैंने यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लिए तो क्या करेगा भाई, ये 50-50 में डिवाइड कर देगा दोनों के बीच में मेरी सिग्नल स्ट्रेंथ को। अगर मैंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स कर दिए तो क्या करेगा, सब में 25-25 डिवाइड कर देगा परसेंट। और अगर मैंने और कंप्यूटर्स कनेक्ट करे तो हर बार मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जाएगी, डिवाइड होती चली जाएगी। इससे एक इशू आता है भाई, जितने ज़्यादा डिवाइसेस हम लोगों के वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, नेटवर्क उतना ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। दैट्स वाई जो वाईफाई होता है, इसको हम लोग जब भी किसी पब्लिक नेटवर्क में यूज़ करते हैं तो हम लोग वहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई मैक्स। जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड, जब भी हम लोग एक हाई रेंज का वाईफाई नेटवर्क यूज़ करते हैं उसको हम लोग वाईफाई नहीं कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाई मैक्स, बिकॉज ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी को बहुत ही ईजिली मैनेज करता है और ये स्ट्रेंथ को कम नहीं होने देता है नेटवर्क की मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में। अब वाईफाई में वर्क करने के लिए वी नीड 3 थिंग्स। हम लोगों के पास एक नेट का कनेक्शन होना चाहिए, देन वी नीड अ राउटर जो कि क्या करेगा, वायरलेस सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करेगा, एंड देन वी नीड अ डिवाइस, इधर इट कैन बी अ लैपटॉप, डेस्कटॉप और योर मोबाइल फोन। अब आते हैं प्रोटोकॉल के ऊपर। तो भाई जो हम लोग का वाईफाई होता है, एक वाईफाई के प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। 2 तरीके के प्रोटोकॉल्स आते हैं आजकल। वेल बेसिकली नाउ डेज वी हैव 3 प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम लोग WPA, PSK और WPA2 हम लोग अलग अलग इस तरीके के प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए। फाइन, ये क्या करते हैं भाई, हम लोग वाईफाई की रेंज को डिफाइन करते हैं कि नेटवर्क रेंज कैसी रहेगी, सिक्योरिटी किस तरीके की रहेगी। फाइन, और ये क्या करते हैं, हम लोग को वाईफाई नेटवर्क क्रिएट करने में और उसमें पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एक ऐसा टॉपिक जिसको लेके सबके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स और डाउट्स थे। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर कट साइड में कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम्स ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। हम लोग बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, और सबको बड़ा ही ज़्यादा डाउट है कि आखिर ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो बड़ा मैं ईजी वर्ड्स में बेटा तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास एक PDF फाइल है तुम लोगों के चैप्टर 3 के नोट्स की या चैप्टर 4 के नोट्स की। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तुमको वो फाइल भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। जैसे ही मैं तुमको वो फाइल व्हाट्सएप पे भेजूंगा तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन, एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई अगर गलती से तुमने व्हाट्सएप से उस फाइल को कर दिया डिलीट तो तुम उसको दोबारा वहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाओगे और तुमको अपने किसी फ्रेंड से मंगवानी पड़ेगी वो फाइल वापस। फर्स्ट थिंग थी। सेकंड, मैंने क्या करा भाई, मैंने अपने गूगल ड्राइव पे इस फाइल को कर दिया अपलोड, और फिर मैंने तुम लोगों के साथ उसकी लिंक कर दी शेयर। अब बेनिफिट यहाँ पर क्या है, जैसे ही तुमने उस लिंक को ओपन करा अपने गूगल ड्राइव में, तुम्हारे पास एक वहाँ पर ऑप्शन आ गया कि सेव दिस फाइल इन योर ड्राइव। तुमने वहाँ पे सेव कर लिया। इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब अगर तुम इस फाइल को अपने फ़ोन से डिलीट कर देते हो गलती से तो वो तुमको तुम्हारे गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या करते हैं भाई, किसी भी चीज़ को अपने कंप्यूटर में स्टोर करने की बजाय इंटरनेट पे सेव कर लेते हैं, जहाँ से कि हम लोग उसको कभी भी कैसे भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूँ भाई, चलो मैं तुम लोग ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो उस टाइम पे मैंने अपलोड करी हुई है यूट्यूब पे। हम लोग ज़रा कंसीडर करते हैं यूट्यूब को एक क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरीके। फाइन, वी कैन कंसीडर दिस यूट्यूब एज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है भाई, ये जो मेरा यूट्यूब का वीडियो है, ये इसको मैंने एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया है, और जब तुम लोग उसको अपने घर पे बैठ के देख रहे हो तो ये वीडियो तुम लोगों के फ़ोन्स में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारे फ़ोन का स्टोरेज स्पेस नहीं कंज्यूम कर रहा है, और तुम जितनी बार चाहो उतनी बार उसको अपने फ़ोन से एक्सेस करके देख सकते हो, और ना ही तुम उसको अपने फ़ोन से डिलीट कर सकते हो। नॉट इवन फ्रॉम ए मोबाइल फोन, इफ इन केस यू वांट टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम एनी PC और फ्रॉम एनी अदर डिवाइस, तो तुम उस वहाँ से भी इसको ईजिली देख सकते हो। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द क्लाउड। क्लाउड में अगर हम लोग अपने डेटा को एक बार ही किसी क्लाउड कंप्यूटर में, यानी कि इंटरनेट पे अवेलेबल किसी PC में स्टोर कर लेते हैं, तो उसको हम लोग कहीं से भी कभी भी कैसे भी ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। फाइन, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब जरा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग की इंपॉर्टेंस कहाँ पर आती है। आज की डेट में हम सब लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे तुम लोगों के पेरेंट्स के पास होगा वोटर ID कार्ड, देन दे मस्ट हैव अ आधार कार्ड, देन दे विल हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, फाइन, दे विल हैव अ राशन कार्ड एंड सम अदर डॉक्यूमेंट्स। जब भी हम लोग रास्ते में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को पेपर फॉर्म में अपनी पॉकेट में कैरी करते हैं। अगर तुम इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कैरी कर रहे हो पेपर के फॉर्म में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भाई, कि हो सकता है वो पेपर गुम हो जाए, या अगर तुमने इसकी इमेजेस क्लिक करके अपने फ़ोन में रखी हुई है तो वहाँ पे एक इशू है। हो सकता है तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो जाए या उसकी बैटरी डेड हो जाए, और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूरत पड़ने पर यूज़ नहीं कर पाओगे। फाइन, बट अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स को एक क्लाउड पे स्टोर करके रखा हुआ है, अगर तुमने इनको एक गूगल ड्राइव में या तुमने इसको वन ड्राइव में कहीं पर स्टोर करके रखा हुआ है,
तो बेनिफिट क्या होगा भाई कि जब भी तुमको इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तुम किसी भी बंदे के, अपने आस पड़ोस किसी भी आदमी के फ़ोन में अपना गूगल ड्राइव एक्सेस करोगे और वहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स को ईजिली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग। हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बस हम लोगों के पास अपने क्लाउड कंप्यूटिंग का आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। जब भी हम लोग जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को गूगल ड्राइव का एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है। तो तुम लोग आज एक ट्राई करना, छोटी सी चीज़, तुम लोग अपने जीमेल के आईडी पासवर्ड से, अगर अकाउंट नहीं है तो आज एक अकाउंट बनाओ जीमेल पे और उस जीमेल के आईडी पासवर्ड से गूगल ड्राइव को एक्सेस करो और वहाँ पे कुछ डेटा को स्टोर करो और उसकी लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड फॉर मोर डिटेल यू कैन सर्च सम वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तब तुम लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो भाई वी हैव इन जनरल टू टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट। पहले बात करेंगे पब्लिक वाले की। पब्लिक का मतलब हो गया कुछ ऐसा जो सबके लिए है, जिसको जनरल पब्लिक यूज कर सकती है, यानी कि हम और तुम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। फाइन, अब सपोज करो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, फाइन, जिसके मुझे शेयरिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उसको यूज़ करूँगा पब्लिक क्लाउड में। अभी जो पब्लिक क्लाउड होता है ये कॉमन सर्विस होती है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसलिए ये जनरली बहुत ज़्यादा चीप होती है और इसके लिए हम लोग को हाई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक खराबी होती है इसकी कि इनसिक्योर भी होती है। अगर मैं बात करता हूँ गूगल ड्राइव की, भाई अगर मैंने गूगल ड्राइव में कोई अपनी फाइल स्टोर करी हुई है, मैंने उसकी लिंक तुमको शेयर कर दी, हो सकता है तुम अपने फ्रेंड्स से उसकी लिंक शेयर कर दो, वो अपने फ्रेंड्स से उसकी लिंक शेयर कर दें, और मैं नहीं चाहता था कि और किसी के साथ उसकी लिंक शेयर हो, बट क्या हुआ, फिर भी बहुत सारे लोगों के साथ उसकी लिंक शेयर हो गई। फाइन, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दीज ऑल पब्लिक क्लाउड्स। इन पब्लिक क्लाउड्स में हम लोगों को बहुत कम चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसका एक फ्री वर्जन भी होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी गूगल ड्राइव पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो अकाउंट फॉर फ्री होता है और उसमें हम लोगों को 14 GB ऑफ स्टोरेज मिलता है। इट मीन्स तुम उसमें एक बार में 14 GB को स्टोर कर सकते हो। फाइन, बट जो पेड सर्विसेज होती हैं वहाँ पर हम लोग को अनलिमिटेड स्पेस मिलता है, जहाँ पे हम लोग अनलिमिटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने अकॉर्डिंग अलग अलग प्लान्स को भी पिक वहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। वेल, लेट्स टॉक अबाउट आवर स्कूल। सपोज करो हम लोग बात करते हैं स्कूल की, तो भाई सपोज करो स्कूल को कोई एक सर्कुलर है या कोई पेपर है या कोई एक फॉर्मेट है जो टीचर्स के साथ शेयर करना है। वेल, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ टीचर्स के साथ शेयर करनी होगी तो गूगल जो स्कूल है वहाँ पे गूगल ड्राइव को तो यूज़ करेगा नहीं, बिकॉज हो सकता है कोई स्टूडेंट गूगल ड्राइव को एक्सेस कर ले और उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर ले वहाँ से। फाइन, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एक प्राइवेट नेटवर्क का, जो सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लोग ही एक्सेस कर पाएँ और बाहर के लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएँ। फाइन, तो अगर कोई एक ऐसा नेटवर्क है जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी कंपनी का खुद का नेटवर्क है, और अगर हम लोग उसमें डेटा को स्टोर करते हैं या शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं प्राइवेट क्लाउड। फाइन, तो भाई प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, ये किसी एक कंपनी ने ओन करा हुआ होता है, ये उनका प्राइवेट खुद का नेटवर्क होता है। फाइन, सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ट्रांसमिशन मीडियम्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, दैट इज मल्टीमीडिया। इसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो मैंने बताया था भाई कि मल्टीमीडिया का मतलब होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ मेथड्स और मोड्स फॉर शेयरिंग आर डेटा। यहाँ पे हम लोग मोस्टली 5 टाइप के डेटा की बात करते हैं, दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। टेक्स्ट में होता है रिटन टेक्स्ट या फिर टाइप टेक्स्ट, ग्राफिक्स में होती है इमेजेस, ऑडियो में होता है जो हम लोग सुन रहे हैं इस टाइम पे, वीडियो में होता है जो आप अभी देख रहे हो अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे। फाइन, एंड एनिमेशन में वहाँ पर क्या होता है, कुछ एनिमेटेड 2D या 3D कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्रेसिव फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टर्म की, जो है सोशल नेट मीडिया। फाइन, सोशल मीडिया भाई क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम में बताया था भाई, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अलग अलग लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग, रिलीजन के लोग, अलग अलग सिटी या कंट्रीज़ के रहने वाले लोग आपस में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे लोग अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की भाई, तो फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन एंड ट्विटर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एंड मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। फाइन, और यहाँ पर एक और टर्म आता है चैट साइट्स। तो भाई चैट साइट्स कौन सी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर जाके हम लोग चैटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट फेसबुक। फाइन, अगर हम लोगों ने फेसबुक के मैसेंजर को आप लोगों ने देखा होगा, तो जो फेसबुक की मैसेंजर वाली ऐप है वो क्या है, वो चैटिंग एप्लीकेशन है। फाइन, तो इसी तरीके से कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ चैट कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो हो जाती है हम लोगों की चैट साइट्स। सो इट वॉज द जिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ कॉमन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग कुछ अलग डिस्कस करेंगे जो तुम लोगों के एग्जाम के लिए रिलेटेड होगा, और नेक्स्ट टर्न में यू विल गेट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। टिल देन stay safe, stay healthy and keep learning, and thank you for watching this video. Over this side you will get the class 9th playlist. उस प्लेलिस्ट में जाके अपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के नोट्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करो,
and over this side you will get the previous class video.